Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a series of informative videos on the subject of magnetism. Aimed at Class 12 boards, IIT, NEET, and various CET aspiring students, these videos provide a comprehensive understanding of this fascinating topic. Magnetism, a phenomenon that has intrigued mankind for centuries, plays a vital role in various fields such as physics, engineering, and medicine. The videos cover fundamental concepts like magnetic fields, magnetic forces, and magnetic induction. Students will also learn about important laws and principles, including Ampere's law, Faraday's law, and Lenz's law. The tutorials delve into practical applications of magnetism, such as magnetic materials, electromagnets, and generators. Ignited Minds Tutorials ensures that these videos are not only educational, but also engaging. They utilize interactive visuals, animations, and real-life examples to enhance the learning experience. The content is presented in a concise and easily understandable manner, making it accessible to students of different learning abilities. By exploring magnetism through these meticulously curated videos, students can develop a strong foundation in this subject. Ensuring success in their academic endeavors, the tutorials not only cater to the requirements of Class 12 boards, but also assist those preparing for competitive exams like IIT JEE, NEET, and CET. Ignited Minds Tutorials aims to empower students with the knowledge and skills necessary to excel in these examinations and beyond. To access this valuable resource on magnetism, interested students can visit the official website of Ignited Minds Tutorials or subscribe to their YouTube channel. Start your journey towards a deeper understanding of magnetism today. Okay, Bacha Party, we'll start with magnetism today. One second, people. तो मैग्नेटिज्म देखो, हमने जो जो चीज़ें कंप्लीट की हैं उसमें मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, तो जाने दीजिए। और जैसे तू कितना कैमरा फॉलो करता है, वहाँ पूरा तूने छतरी उतरी डाल के अपना घर बसा रखा है तूने आराम से, छतरी बैग पता नहीं क्या क्या। ओके, मैग्नेटिज्म भाई साहब क्या होती है? व्हाट इज मैग्नेटिज्म पीपल? व्हाट इज मैग्नेटिज्म? हाँ, आकर्षण, ठीक है। ओके, सो आपने देखो मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन तो आपने भाई साहब 9th में अपना 11th में पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों को जब आप पढ़ लेंगे तभी आप मैग्नेटिज्म को समझ पाएंगे, ठीक है। बिकॉज इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स आपके मैग्नेटिज्म में कोरिलेट होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मोशन इज, you have to have a proper understanding of electrostatics, and you have to have a proper understanding of current electricity as well in order to understand and comprehend magnetism, ठीक है। ओके, तो आज की मतलब आज देखते हैं, पता नहीं कवर हो पाता है कि नहीं, बट व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायो सावर्ट्स लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, एक और आता है आपका इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर भी होता है, ठीक है। ओके, सो जैसे यहाँ पे है हमारे थे भाई साहब ऑयस्टेड, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे भाई साहब। इन्होंने क्या देखा कि अच्छा कोई वायर है अगर, और उस वायर के आजू बाजू मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, तो मैग्नेटिक नीडल ट्विंग ट्विंग ऐसे करेगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक नीडल कभी भी इन्फ्लुएंस किससे होता है भाई साहब? मैग्नेटिज्म से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे देखो ये वायर है, अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है और इसके आजू बाजू अगर मैं कोई मैग्नेटिक नीडल लेकर आऊँ तो क्या वो घूमेगा? आंसर इज यस, ठीक है। तो आप बोलोगे अरे भाई साहब वायर के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, वो तो इंसुलेटर है, तो क्या इससे होगा? नहीं होगा, ठीक है। सो इंसुलेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसुलेटर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरा स्टूडेंट क्यों मार रहे हैं भाई? चलो एक मिनट, दोस्ते ने मारते हुए लेके जा रहे भाई। ओके, सो ये ऑयस्टेड थे एंड ही बेसिकली डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच he observed that when he is passing electric current through any wire and he is keeping a magnetic needle, this magnetic needle will show some amount of deflection. ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आपका दिखाएगा, ठीक है। अभी ये एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है
एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और मैग्नेटिक नीडल या कंपास का खुद का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता ही है। तो जैसे ही ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्लैश करेंगे तो इसका घूमना होगा, ठीक है। ओके, ही डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही प्लेस्ड द मैग्नेटिक कंपास विद अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है, विद इन अ करंट कैरिंग लूप। He observed that the magnetic compass shows deflection when current is passed through the loop, ठीक है, supporting the fact that moving charges induce magnetic field, the deflection changes its direction when the direction of current is changed। और इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, मतलब इसको माइनस और इसको प्लस कर दिया जाए, तो इसका डिफ्लेक्शन भी अलग तरीके से होगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो डज दैट मीन कि यहां से जो करंट जा रहा है उसमें मैग्नेटिज्म है, तो सारे वायर्स में मैग्नेटिज्म होगा, तो सारे लोहे की चीजें जाके वहां पे चिपक जाएंगी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? नेग्लिजिबल है, ओके, नेग्लिजिबल भी है और एक दूसरे को कैंसिल करता भी आ रहा है, ठीक है। आपके पूरे घर में जो वायरिंग है वो नेग्लिजिबल भी है, प्लस कंसील्ड वायरिंग में से भी आपका भाई साहब हो सकता है। एक्चुअली में जो ये तो खैर ऊपर का वायर है, लेकिन जो कंसील्ड वायरिंग होती है आपके घरों में, उसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको अपन कैसे लोकेट करेंगे? ये मैग्नेटिक कंपास लेके लोकेट करेंगे। तो अगर आप मैग्नेट लेकर जाएंगे और जहाँ पे भी आपको दिख रहा है भाई साहब मैग्नेट का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे फॉल्ट है, तो उधर तोड़ के निकालो या अंदर से डक से वायर डाल के देखो, जो भी करना है वो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो he did an experiment in which he placed a magnetic compass within a current carrying loop. He observed that the magnetic compass shows deflection when the current is passed through the loop, supporting the fact that moving charges induce magnetic field. The deflection changes its direction when direction of current is changed, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं भाई साहब, ठीक है, नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। ओके ओके ओके, तो अभी जैसे ही भाई साहब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से आपका करंट जाता है, यू विल होल्ड इट लाइक दिस, ठीक है, ये आपका राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। सो लेट्स से योर थंब इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, थोड़ा उसकी तरह प्रैक्टिस करना, वो देखते देखते लिख सकती है भाई साहब, ट्रेनिंग ले उससे, ट्यूशन क्लासेस लिया कर, ठीक है, रोज आधा घंटा। तू ऐसे मुंडी घुमाने रहा तो ये निकल जाएगा भाई साहब, वो देख 2 लाइन में ऐसा आगे देखते देखते ऐसे 2 लाइन में लिखने का प्रैक्टिस कर, ठीक है। ओके, खैर, तो यहाँ पे देखो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, तो यहाँ पे आपका देखो ये हो गया थंब विच इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। द एनसर्कलिंग ऑफ योर फिंगर्स विल एक्चुअली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ में टर्मिनेट होती है, ठीक है। सो ऐसा अगर है, देखो ये देखो ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, तो आपका देखो ये ऐसे अनसर्कलिंग ऑफ फिंगर्स कैसे हटते हैं, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है। अभी देखो इसको ऐसे देखो, तो अगर आप मेरे फिंगर्स को ऐसे देखेंगे तो मतलब ऐसे आ रहा है ना ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है और एक आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। वन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड द अदर वन इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। जो आपकी तरफ आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। द वन दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, it is represented by a dot like this, and the one that goes away from you is represented by a cross like this, ठीक है। करंट कैरिंग वायर, राइट हैंड थंब रूल बहुत आसान सा है। यहाँ पे आप थंब को किस में यूज कर रहे हैं? टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। द एनसर्कलिंग ऑफ द फिंगर्स विल एक्चुअली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। सो if you look into this, this is coming towards you, this is going away from you. So the orientation of the magnetic field around the current carrying conductor is like circular rings around the conductor, and the strength of the magnetic field is larger in the vicinity of the conductor. जितने आप current carrying conductor के पास होंगे उतना ज़्यादा magnetic field होगा, जितना आप दूर जाते रहेंगे उतना कम होता जाएगा। क्यों? जितने भी आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, दे ऑल ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। जितने भी आपके नॉन कॉन्टैक्ट, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, सो दे विल ऑल्सो फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, विच मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल रिड्यूस एज पर द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितना दूर जाते जाएंगे वो कम होता जाएगा। बल फिलहाल इसको याद रखिएगा, द वन दैट कम्स टूवर्ड्स यू इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, the one that goes away from you into the plane of the paper or the board is having a cross, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे मैंने आपको बोला आपको 3 चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट यू हैव डन इज, ये समझ लीजिए एक चार्ज है जो भाई साहब मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी की बात करें तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज विच इज एट रेस्ट। बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बड़ा, लेकिन ये चार्ज रेस्ट पे है,
कुछ नहीं होगा, ठीक है, नथिंग विल बी एक्सर्टेड, ठीक है, गुड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इंप्रूविंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज विच इज एट रेस्ट। कोई भी आपका जो अगर कोई चार्ज है जो रेस्ट पे है उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, ठीक है। इट ओनली स्टार्ट्स अप्लाइंग फोर्स व्हेन द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, जैसे ये चार्ज मूव करने लगे तब एक फोर्स अप्लाई। देखो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस मतलब क्या है भाई साहब, सारे अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है, ठीक है, जिस तरफ भी हो, लेकिन इस पे फोर्स तभी होगा, चाहे बाहर की तरफ हो चाहे अंदर की तरफ हो, इस पे फोर्स तभी लगेगा जब ये मूव करना चालू करे, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स विल बी एप्लीकेबल ऑन अ चार्ज विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव विद अ वेलोसिटी। सो आपके तीनों चीजें को देखो, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना भाई साहब, dv बाई सॉरी आपका dq बाई dt, ये क्या हो जाएगा I, ठीक है। तो इसीलिए आपके तीनों कॉन्सेप्ट यहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं अपन, तो मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, दूसरा आप मोशन की बात कर रहे हैं, और तीसरा भाई साहब आप करंट, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। हेंस यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट अबाउट ऑल दीज थ्री, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज विच इज एट रेस्ट, इट ओनली स्टार्ट्स अप्लाइंग फोर्स व्हेन द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग। जब भाई साहब आपका चार्ज मूव करने लगे, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को आपने रखा है, कितना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होना हो, उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। The moment it starts moving, there is a force experienced by that charge, ठीक है। ओके, अभी आते हैं बायो सावर्ट्स लॉ पे। तो बायो सावर्ट भाई साहब इन्होंने क्या बोला, देखो डीएल मतलब क्या होता है, इनफाइन, इसको हम करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली में आईडीएल होता है करंट एलिमेंट, ठीक है। करंट एक ऐसा चीज है जिसको अपन वेक्टर फॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा अलग अलग जगहों पे हमने करंट को वेक्टर फॉर्म देने की कोशिश की है। फिजिक्स में यही आप देखोगे, जितने आप हायर स्टडीज में जाओगे ना, स्केलर को भी खींच खींच के हम वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। कहीं पे आपने एरिया वेक्टर दे दिया, एरिया की वेक्टर होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन एरिया वेक्टर बता दिया आपने। फ्लक्स को लाना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाना है, तो कैसे आप इसको वोल्टेज के साथ करेंगे, तो आप भाई साहब एक एलिमेंट लेते हैं जो वेक्टर फॉर्मेट में हो, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं हम यहाँ पे, ये एक वायर है, ठीक है, करंट भाई साहब ऐसे जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसा, मतलब इस तरफ अंदर जाता हुआ और इस तरफ बाहर आता हुआ। हेंस यू सी दीज डॉट रिप्रेजेंटेशंस एंड हेंस यू सी दीज क्रॉस रिप्रेजेंटेशंस दिस साइड। क्लियर है भाई साहब, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अभी इसका अपन ने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है डीएल, और इस एलिमेंट से कितना करंट जा रहा है, आई। एक्चुअली आई करंट तो सारे एलिमेंट से जा रहा होगा, तो आई डीएल आपका क्या हो गया, करंट एलिमेंट। अंडरस्टैंड, डीएल इज अ वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है, मतलब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो डीएल आपका वेक्टर फॉर्मेट हो गया, और आईडीएल आपका क्या हो गया, करंट एलिमेंट, ठीक है। आईडीएल हो गया आपका करंट एलिमेंट। लेट्स से देयर इज अ पॉइंट पी व्हिच इज हैविंग एन एंगल ऑफ थीटा विद दिस डीएल। ये आपका भाई साहब कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और लेट्स से इसका वेक्टर डिस्टेंस कितना हो गया, आर, ठीक है, क्लियर है। ओके, डीएल क्या है आपका, इनफाइनेटेसिमल वायर सेगमेंट हैविंग डायरेक्शन सेम एज द करंट। तो जब भी आप करंट के डायरेक्शन में एक स्मॉल सेगमेंट को लेते हैं, तो आईडीएल आपका क्या बन जाता है, करंट एलिमेंट। आपने करंट को डायरेक्शन में इसको लिया है, स्मॉल सेगमेंट, ठीक है। इनफाइनाइटेसिमल वायर सेगमेंट हैविंग डायरेक्शन सेम एज द करंट, तो इसका डायरेक्शन भाई साहब क्या है, सेम एज द करंट। हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज, बच्चा पार्टी, अरे वो बच्चा पार्टी क्या बोले जा रहे हैं हम, आईडीएल, ये हो गया आपका करंट एलिमेंट, ठीक है। आई करंट जो है इस तरफ जा रहा है और ये डीएल सेगमेंट है, ठीक है। ओके, सो इनफाइनाइटेसिमल मतलब छोटा सा एक सेगमेंट लिया है, हैविंग डायरेक्शन सेम एज द करंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर मतलब समझ सकते हैं, इसको आपने ओरिजिन मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर लेट्स से थीटा है। इस पॉइंट को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से डीएल से जोड़ूं, तो आपको भाई साहब जो एंगल मिल रहा है वर्टिकल के साथ, वो थीटा है, ठीक है, क्लियर है। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर वी वांट टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे जनरेट हुआ है, उसको अपने को मेजर करना है। द आइडिया इज टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज जनरेटेड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एट द पॉइंट पी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब डी बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, ठीक है। डी बी क्या हो जाएगा, लेट्स से हमने माना कि इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस पॉइंट पी पे, इसका मैग्नीट्यूड है डी बी, ठीक है। ओके, बायो सावर्ट लॉ क्या बोल रहा है, ये जो डी बी है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट। द मोर इज द करंट, द मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया।
और क्योंकि ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चा पार्टी, सो ऑब्वियसली इनवर्स स्क्वायर लॉ इस पे एप्लीकेबल होगा। नॉन कॉन्टैक्ट सारे फोर्सेस पे इनवर्स स्क्वायर लॉ एप्लीकेबल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स में भी ये लॉ आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ओके, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। अभी ये क्या हो गया, ठीक है, देखो भाई साहब, जितना लंबा आपका डी एल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका भाई साहब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना लंबा ये वायर होगा, तो ऑब्वियसली वायर का जो छोटा अंश आपने लिया हुआ है इनफाइनेटेसिमल, द मोर इज द लेंथ ऑफ दैट, द मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी किससे होगी, द अमाउंट ऑफ करंट एंड डीएल। तो इन दोनों को कंबाइन करके अपन क्या लिखते हैं, जो डी बी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया भाई साहब, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट। आर वी क्लियर, ठीक है। एंड डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा बोलो, बाप रे क्या एंट्री है भाई साहब, ओके। तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। साइन थीटा पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी, और साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 90 तक आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनलिटी यूजिंग प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो डी बी को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ऑब्वियसली व्हाट यू डू इज प्लेस अ कांस्टेंट। ये म्यू नॉट हो गया आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे हम एप्सिलॉन नॉट को लेते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे ही यहाँ पे हम लेते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका परमिएबिलिटी और 4 पाई भाई साहब आपका कांस्टेंट। सो दिस इज बेसिकली परमिएबिलिटी अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर फॉर्मेट है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करें तो दिस इज व्हाट यू गेट, हेंस वी कॉल दिस एज द स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है भाई साहब, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ डीबी अगर आप देखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, वेयर आर इज व्हाट, द डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो बायो-सावर्ट लॉ का आप अगर देखोगे तो डीबीएल, अभी अगर हम वेक्टर फॉर्मेट देखें तो व्हाट विल बी द वेक्टर फॉर्मेट बच्चा पार्टी, अरे बोलो ना बोला भाई साहब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका वेक्टर जब दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपका लेट से ए है बी है, अगर मैं ए बी साइन थीटा लिख रहा हूं तो इसका मतलब दिस विल बी अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या लिखा भाई साहब, डी बी को अपन ने क्या लिखा, बोलो ना बोलो, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब यहाँ पे आपका अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, आर के साथ, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे अपन ने आर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, आई तो आपका स्केलर है, ठीक है, फिर क्या लिख सकते हो आप बोलो, डी एल आर साइन थीटा ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, आर का क्यूब। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। आई को अलग ही रखा भाई साहब, आई क्योंकि आपका भाई साहब क्या है, स्केलर है, डी एल आर साइन थीटा। अभी ये जो डी एल आर साइन थीटा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस डी एल इंटू आर। भाई आपका देखोगे अगर स्केलर आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट इज ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए मुझे इसका एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, याद करो भाई साहब, याद करो, ये हो गया ए और ये हो गया भाई साहब बी। अगर मैं कर रहा हूं क्या, ए इंटू बी, ठीक है, नहीं 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 भाई साहब मत वैसा गलती मत कीजिए, हम यहाँ पे साइन थीटा निकाल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हो तुम। वो जो तुम बोल वो रिजल्टेंट हुआ, एडिशन का रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी का। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट रिजल्टेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए इंटू बी अगर आप करते हो तो ये कितना आता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। नाउ दिस इज अ वेक्टर, सो दिस विल बी लेट्स से अ नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर क्या होगा, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, ऐसे गए, ये थंब हो गया आपकी तरफ,
तो आपका जो ये वेक्टर है इसका रिजल्टेंट आपकी तरफ होगा। इफ लेट्स से यू आर डूइंग अ b into a, देन हाउ विल यू इनक्लोज दिस, ये b into a, b से a की तरफ, तो आपका भाई साहब आपका जो वेक्टर है थंब दैट इज पॉइंटिंग इनसाइड, सो दिस विल बी एन इनसाइड वेक्टर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो व्हाट यू आर सेइंग इज a प्लस b, ठीक है, उसका रिजल्टेंट है, हम यहाँ पे a into b की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, सो आपका देखो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, तो अगर मुझे को इसको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ऊपर नीचे मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसको क्या लिख सकते हैं, आइडियल r साइन थीटा को, क्योंकि ये तो भाई साहब आपका वेक्टर नहीं है, तो जबरदस्ती का इसको खींचकर अपन वेक्टर नहीं बना सकते, लेकिन इसको तो बना सकते हैं ना, r तो आपका वेक्टर है। ठीक है, तो dl इंटू आर, dl भी आपका वेक्टर है, क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन में लेंथ का एक इनफाइनाइटेसिमल पार्ट ले रहे हैं, और भाई साहब आपका r भी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपको ये मिल रहा है, ठीक है, सो दिस विल बी ऑब्वियसली dl इंटू आर, और dl इंटू आर है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आपका dl इस तरह है, ठीक है, dl इंटू आर, और आपका r इस तरफ है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू विल डिटरमिन द डायरेक्शन, आप डायरेक्शन को डिटरमिन करेंगे। ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमिन करेंगे। ओके, अभी जैसे आप भाई साहब यहाँ पे देखो, ये dl हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये हो गया r, so the vector format of Biot-Savart's law, or rather the magnetic field, will be equal to mu naught by 4 pi into I dl, or rather I into dl into r vector product upon r का क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्मेट हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है भाई साहब, ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो न्यूटन पर अमीटर पर मीटर और टेस्ला बोलेंगे हम इसको। ठीक है, न्यूटन पर अमीटर पर मीटर, एंड दिस इज नोन एज टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB हो गई, म्यू नॉट क्या हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों की जोड़ी को कभी मत तोड़िए। ठीक है, जैसे आपका भाई साहब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप नहीं तोड़ते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका होता है 9 × 10⁻⁹, वैसे ही म्यू नॉट बाई 4 पाई को भी आप क्या रखेंगे, 10⁻⁻⁷। ऑलवेज कीप इट दैट वे। ठीक है, ऑलवेज कीप इट दैट वे फॉर योर कैलकुलेशंस। The direction of the magnetic field can be obtained using right hand palm rule. तो हम right hand palm rule से direction of magnetic field को determine कर सकते हैं, we can determine it. ठीक है, clear है भाई साहब? Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. एक मिनट हम